परचेज्ड गुड्स ऑफ 12,000. कल हमने एक सिमिलर रेंज का टाइप का ट्रांजैक्शन किया था जहां पे परचेज और सेल साथ में होते हैं. ओके देखो ध्यान से. परचेज गुड्स ऑफ 12,000 एट 5% TD एंड 2% CD फॉर चेक फ्रॉम विशाल. बराबर है. ट्रांजैक्शन रीड कर रहा हूँ जो यहाँ पे शायद थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, कुछ चेंज हो गया तो बोल देना. परचेज गुड्स ऑफ 12,000 एट 5% TD एंड 2% CD फॉर चेक फ्रॉम विशाल. सोल्ड हाफ द गुड्स टू वसंत एट 3% TD ऑन लिस्ट प्राइस. बराबर है. ओके टेल मी द फर्स्ट पार्ट. परचेज कैसे हो रहा है? कैश पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है? एकदम ध्यान से. कैश कैश बेसिस हो रहा है. दो द पार्टीज नेम इज गिवन, वन कंडीशन इज फुलफिल्ड, लेकिन फॉर चेक आ गया. कैन यू सी दैट? सो फॉर चेक आ गया, सो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, राइट? सो कैश ट्रांजैक्शन है तो विच डिस्काउंट शुड कम? बोथ द डिस्काउंट शुड कम. Both the discount should come. So पहले तो you start with your gross price which is 12,000. The gross amount is 12,000. On that you take TD 5%, 600 rupees. Net amount is 11,400. खाली परचेज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? अभी सेल्स हम लोग बाद में देखते हैं. अभी सीडी भी लेना पड़ेगा अपने को. We will have to calculate CD. Yes, we'll have to calculate CD now. 2% is the CD, so that comes to 228 rupees, and if you subtract that you get 11,172, right? 11,172. Okay, now try to frame the entry for cash purchase of. आपने चेक से पे किया है. Okay, कैश परचेज की एंट्री विथ चेक कैसे होगी एंट्री? थिंक अबाउट इट. Purchase account debit to cash account to discount received account. कैश के जगह Bank. बैंक. बैंक Purchase account debit to bank account to discount received account. Is that clear? Purchase account debit to bank account to discount received account. All of you got that? Any confusion in this? पक्का समझ आया? विनीशा, मेघा, मोक्ष, गर्गी, विदुषी, comfortable? Yes, sir. Rudra, are you understanding? Chalo. Purchase account debit to bank to discount received. Okay, tell me the purchase amount. How much you will write in purchase? The bill amount. That is 11,400. How much you will write in bank? आपने पैसा दिया 11172. Okay, and discount earned, discount received is 228. 228 का gain हो गया आपका. Okay, narration I am skipping. Okay, short में लिख सकते हो being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Then the second half you read properly. And sold half the above goods to Vasant at 3% TD on the list price. Half the above goods you are selling. Are we selling full or we are selling half? Half. Half बेच रहे हो आप. And can you tell me, are you selling on cash or credit? Credit. All of you read and check and tell me. Credit. Please check करो सब लोग और बताओ मुझे. Are you selling on cash or credit? क्रेडिट पे बेच रहे हो. आपने पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. बराबर है. सो इट्स क्रेडिट. ओके नाउ क्रेडिट है तो विच डिस्काउंट शुड कम? ओनली ट्रेड डिस्काउंट. अच्छा, यू आर बाइंग एंड सेलिंग द सेम लॉट. याद है आपको कल बताया था. योर ग्रॉस प्राइस विल इट चेंज और विल इट बी सेम? half but same price का half. So what was your earlier gross price? 12,000. So 12,000 का half कर दो, that will be 6,000. Correct? 6,000 पे पहले आप TD ले लो. What is the percentage of TD at the time of sale? 3%. So 3% subtract किया तो you got how much? 180. So net amount is what? 5820. 5820. बस इधर ही आके रुक जाना है क्योंकि आप लोग क्रेडिट पे बेच रहे हो. ओके, you're selling it for credit. CD नहीं आएगा, क्रेडिट पे बेच रहे हो, राइट? Okay, tell me the entry for credit Vasant sale account debit to sales account. It will be Vasant account debit to sales account. Agree all of you? Vasant is the receiver and credit all incomes and gains. Cash नहीं आया. It is simply Vasant account debit to sales account and amount should be 5820.
5820 being goods sold on credit to Vasant, being goods sold on credit to Vasant. तो परचेज हमारा कैश में हुआ है, सेल हमारा क्रेडिट पे हुआ है. परचेज हमारा कैश में हुआ है, सेल हमारा क्रेडिट पे हुआ है. अच्छा, ट्रांजैक्शन देख के कैन यू टेल मी इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस? आर वी मेकिंग प्रॉफिट और लॉस? 120. 20 profit. Can you compare 11400 with 5820? No matching. No, we have to divide it by 2. मैचिंग कंसेप्ट बताया था ना, क्या करने का? डिवाइड बाय 2. तो कितना होता है? 5700 होता है. अरे sorry. Purchase is 5700 and your sales are 5800. तो प्रॉफिट हो गया 120. 120 का ही हुआ है कि और भी फाइनल प्रॉफिट ज्यादा हुआ है? सर ज्यादा हुआ है. 1172 का हाफ करेंगे तो इसका होगा 11172 का हाफ करो, या फिर ये जो प्रॉफिट हुआ है आपका, कितना प्रॉफिट आपको हुआ है? 120 का प्रॉफिट हुआ है ना आपका. ये 120 समझा? 2%. और उसके बाद ये डिस्काउंट भी मिला है ना आपको, परचेज के रिसीव्ड भी है. डिस्काउंट रिसीव्ड का भी हाफ करो, कितना होता है? 114. तो 120 प्लस 114, 234. 120 और 114, 234 का प्रॉफिट हुआ है. इज दैट क्लियर? 234 का प्रॉफिट किया. गॉट इट? सो ये हम लोग आगे लर्न. Why 114 plus? डिस्काउंट रिसीव्ड भी है ना परचेज के वक्त. कैन यू सी दैट? ये तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, ऊपर जो था वो. नीचे हमारा नेट प्रॉफिट हमने ढूंढा. ये डिस्काउंट रिसीव्ड भी इनकम है ना. हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस, है ना. कल हमने डिस्काउंट अलाउड रिसीव दोनों लिया था. यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड कुछ था नहीं तो रिसीव ले लिया. अभी नेक्स्ट या 228 को किससे माइनस किया? 228 का हाफ कर दिया. 228 टोटल था ना, उसका हाफ 114 अभी तक का मैचिंग. तो 114 प्लस 1 कितना था? 114 प्लस 120, 224 का प्रॉफिट फाइनल. अच्छा, उसके बाद लेट अस कम टू 40th one, that is connected. Sorry, 41st. 41st one is connected to this. Read. Vasant returned 1/3 of the goods which were returned back to Vishal. Okay? Yes. मोक्ष आंसर करके म्यूट पागल हो गया. Now, Vasant returned 1/3 of the goods which were returned back to Vishal. Vasant returned 1/3 of the goods which were returned back to Vishal. Okay? तो वसंत का सेल में कितने का सेल किया? वसंत को चेक यहाँ पे. वसंत को कितने का सेल किया है? 5820. 5820 का सेल किया है. ग्रॉस लेना है कि नेट लेना है? आप बताओ मुझे. Net. नेट. बोलो बोलो, ग्रॉस लेना है कि नेट? Net. नेट लेना है, सबको पता है. सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हैपन एट सेलिंग प्राइस व्हिच इज नेट सेलिंग प्राइस. Purchase and purchase return will happen at gross price, cost price. ग्रॉस प्राइस पे कुछ रिकॉर्ड होता ही नहीं है, टीडी माइनस कर देते हैं हम लोग. बराबर है? तो अभी कैसे अमाउंट कैसे ढूंढोगे? 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ व्हाट? 5820. 5820 का 1/3 करोगे 1940. दैट इज 1940. 1940. समझा? इसका मतलब क्या हुआ? वसंत को हमने सेल किया था, उसका 1/3 डिफेक्टिव निकला तो वसंत ने अपने को वापस कर दिया. अभी मुझे बताओ इसका एंट्री क्या बनेगा? व्हाट शुड बी द जर्नल? Sales return account. Sales Debit. return. Vasant account. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू वसंत अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. या मॉडर्न कंसेप्ट, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. ओके? और वसंत इज अ डेटर, एसेट घटा तो क्रेडिट. डेटर कम हो गया, डेटर अपने को इतना पैसा कम देगा. अमाउंट कितना होगा यहाँ पे? 1940. एंट्री समझ में आई? पहले ये सेल्स रिटर्न है, ये समझ में आया? वसंत इज रिटर्निंग द गुड्स टू अस, तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस, एंड वसंत इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. इज दैट क्लियर? नाउ सेल्स रिटर्न टू वसंत, गुड्स रिटर्न्ड बाय वसंत. गेटिंग दैट? अभी उसी के हाफ पार्ट बाकी है. Forum, are you getting this?
ओके देन रिमेनिंग हाफ क्या दिया है पढ़ो. वसंत रिटर्न 1/3 ऑफ द गुड्स विच वर रिटर्न बैक टू विशाल. देखो हमने क्या किया था, विशाल से खरीदा था, वसंत को बेचा था. तो वसंत ने जो 1/3 डिफेक्टिव गुड्स अपने को भेजा, हम क्या अपने पास रख देंगे? हम क्या करेंगे, हम सेम गुड्स विशाल को रिटर्न कर रहे हैं. विशाल को रिटर्न कर रहे हैं. व्हाट इज दिस रिटर्न कॉल्ड? द वन व्हिच वी रिटर्न टू Purchase विशाल. return. Purchase This is called return. purchase return. This is called purchase return. Okay. Can we write the same amount in purchase return 1940? No, you have to divide 11,400 by 3. What you will have to do? आपको परचेज का नेट अमाउंट देखना पड़ेगा. यहाँ पे दिख रहा है आपको परचेज का नेट अमाउंट. What is परचेज का नेट अमाउंट? 11,400. 11,400. ठीक है. जैसे यहाँ पे सेल्स का नेट अमाउंट वाज 5820. नेट मतलब आफ्टर टीडी. आफ्टर सीडी वाला मत लेना. Why am I taking after TD and not after CD? रिटर्न्स कैसे होते हैं? कैश पे होते हैं कि क्रेडिट पे होते हैं? Credit. कैश डिस्काउंट कंसिडर नहीं करने का, क्रेडिट पे होता है. बराबर है. तो किसका 1/3 लोगे बताओ मुझे. 11,400. बोलो बोलो बाकी लोग को समझ में आ रहा है? किसका 1/3 लेना है? समझ में आ रहा है? 7,400. हाँ देखो 11,400. वाई 11,400. देखो यहाँ पे सेल्स, पहले तो ये समझना है कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्रेडिट पे होता है. क्रेडिट पे होता है तो कौन सा डिस्काउंट आना चाहिए? खाली टीडी. टीडी माइनस होके आना चाहिए. आर यू गोइंग टू सबट्रैक्ट सीडी? नो. तो हमें कौन सा अमाउंट देखना है? आफ्टर टीडी वाला अमाउंट. दोनों जगह पे आफ्टर टीडी वाला अमाउंट देखना है. दिस विराली कम ऑन. डाउट है ना? डाउट आंसर करके या क्वेश्चन आंसर करके प्लीज म्यूट पे चले जाना. नाउ हमें ये ध्यान रखना है कि रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट. रिटर्न्स अगर क्रेडिट पे होता है तो आपको कौन सा डिस्काउंट लेना है? आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लेना है. बराबर है ना? कैश डिस्काउंट कभी माइनस नहीं होगा रिटर्न्स के वक्त. तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, तो हमने सेल्स रिटर्न के वक्त क्या किया, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट था ये 5820 ये लिया, इसका 1/3 कर लिया. बराबर है. तो वी गॉट 1940. सेल्स रिटर्न का अमाउंट वाज 1940, 5820 का 1/3, नेट अमाउंट का 1/3, आफ्टर टीडी अमाउंट का 1/3. बराबर. सेम लॉजिक आपको परचेज रिटर्न पे अप्लाई करना है. तो परचेज क्या प्राइस पे किया था? परचेज हमारे पास तीन प्राइस है, दिख रहा है. अपने पास 12,000 भी है, 11,400 भी है, 11,172 भी है. लेकिन याद रखना है हमें कौन सा प्राइस लेना है? आफ्टर टीडी वाला. आफ्टर टीडी वाला कौन सा है? 11,400. नेट प्राइस. नेट प्राइस इज 11,400. तो किसका 1/3 लोगे आप? किसका 1/3 आर वी सपोज? 11,400. विल यू टेक 1/3 ऑफ 11,400 का 50% का 1/3 आएगा ना, क्योंकि 1/6 लेना वो पड़ेगा. भी करते हैं भैया, वो भी करते हैं. और 12,000 आना चाहिए. हाँ एक मिनट. 12,000 अगर लिया तो 12,000 क्या हो जाएगा आपका? ग्रॉस हो जाएगा. तो ग्रॉस पे क्या करना पड़ेगा आपको? टीडी माइनस करना पड़ेगा. तो 12,000 का 1/3 लेके करोगे तो वापस टीडी माइनस करना ही पड़ेगा ना. इससे अच्छा नेट ही ले लो. डायरेक्टली आपको आफ्टर टीडी अमाउंट मिल रहा है. समझ में आई बात? तो हमेशा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्रेडिट पे हो रहे हैं. क्रेडिट पे हो रहे हैं तो कौन सा डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है? तो खाली टीडी. तो आफ्टर टीडी वाला अमाउंट लेना है. दोनों जगह पे आफ्टर टीडी वाला अमाउंट लेना है. बिल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज, जितने का बिल बना है. इज दिस क्लियर? ओके. नाउ 11,400 का 1/3 किया मैंने, ठीक है. लेकिन मुझे सोच के बताओ, क्या एग्जैक्टली जितना खरीदा था उसका 1/3 हम रिटर्न कर रहे हैं कि जितना बेचा था उसका 1/3? उसका भी 50% देना पड़ेगा. क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है, हमने 100 रुपए का गुड्स खरीदा और 50 रुपए का बेचा. 50 का हाफ 25 का रिटर्न हुआ है. तो 100 का कितना होता है? 25 कितना होता है? 1/4 होता है. 1/4 होता है. तो हमें एक और चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी. 11,400 का 1/3 तो किया,
उस पे और क्या करने पड़ेगा, हाफ. विल स्टिल हैव टू मल्टीप्लाइड इट बाय हाफ, क्योंकि आधे का 1/3 हो रहा है, मतलब टोटल का 1/6 हो रहा है रिटर्न. ये समझ आ रही है बात? सर नहीं आ रहा समझ में. ओके, तो एक और दूसरा नहीं मेथड, आया समझ में. एक और दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, आराम से सुनो. 11,400 का 1/3 का हाफ करो, कितना आता है? 1900. 1900 आया. 1900. हाँ 1900. एक मिनट, पहले एंट्री पास कर दो, फिर बताता हूँ वापस अमाउंट. एंट्री क्या होगी? सर बोलो, परचेज रिटर्न की एंट्री, जर्नल एंट्री. वी हैव Vishal रिटर्न account debit to purchase return account. विशाल अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. आर ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? विशाल अकाउंट डेबिट. we doing half? मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैलकुलेशन. वेट. विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अमाउंट कितना आएगा? 1900. अमाउंट कैसे आया बताता हूँ वापस. एंट्री बैठी दिमाग में, विशाल टू परचेज रिटर्न. विशाल इज द रिसीवर, परचेज रिटर्न क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंट्री क्लियर है? विशाल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. रिटर्न कर दिया, परचेज का ऑपोजिट. ठीक है, तो विशाल टू परचेज रिटर्न्स बीइंग गुड्स रिटर्न टू विशाल. अभी अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आया? वंस अगेन आई विल रिपीट. देयर इज वन मोर शॉर्टकट नहीं, ज्यादा थोड़ा इजी वे है, ओके, ऑफ कैलकुलेशन. देखो, हमने विशाल से कितने ग्रॉस प्राइस का गुड्स खरीदा था? अब ग्रॉस प्राइस देखो, विशाल से 12,000. कितने ग्रॉस प्राइस का गुड्स खरीदा था? 12,000. और वसंत को कितने ग्रॉस प्राइस का गुड्स बेचा था? 6,000. 6,000. आधा बेचा था हमने, राइट? मैं कौन सा प्राइस ले रहा हूं? ग्रॉस. रिमेंबर दिस, आई एम टेकिंग ग्रॉस. ओके, विशाल से 12,000 ग्रॉस प्राइस का गुड्स खरीदा था, वसंत को 6,000 ग्रॉस प्राइस का गुड्स बेचा था. अभी वसंत ने मुझे कितना रिटर्न किया? सर वो 6,000 1/3. 1/3 रिटर्न किया. ये 6,000 ग्रॉस प्राइस लिया है मैंने. 12,000 ग्रॉस था तो 6 भी ग्रॉस लिया है, ग्रॉस बिफोर टीडी वाला. अभी 6,000 का 1/3 करो, कितना आता है? 2000. 2,000. 2,000 जीपी है, ग्रॉस प्राइस है, बराबर है 6,000 का 1/3. मतलब वसंत ने मुझे 2,000 ग्रॉस का गुड्स रिटर्न किया. कैन आई से दिस? ग्रॉस. वसंत रिटर्न 2,000 ग्रॉस का गुड्स. यहां तक समझ आया आपको? 12,000 ग्रॉस था, 6,000 ग्रॉस बेचा, 1/3 ऑफ ग्रॉस लिया, मतलब 2,000 इज ग्रॉस. नाउ टेल मी, आर वी सपोज टू रिकॉर्ड ग्रॉस प्राइस इन आवर बुक्स और नेट प्राइस? नेट प्राइस. नेट प्राइस. तो अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप कैसे जाते हो? टीडी काट. टीडी काटते हो, टीडी सब्ट्रैक्ट करते हो. ऑल ऑफ यू अग्री? अच्छा, ये 2,000 ग्रॉस है तो मुझे नेट पे जाना है, तो मुझे टीडी माइनस करना है. तो मैं कौन सा टीडी माइनस करूंगा? वसंत का कि विशाल का? यहाँ पे विशाल. वसंत का. वसंत का. वसंत का, क्योंकि सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी होता है, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी माइनस होगा. सेल्स के वक्त जो टीडी होगा वही सेल्स रिटर्न के वक्त भी टीडी माइनस करोगे ना. सेम प्राइस, आपको कल बताया था ना, 60 रुपीज का गुड्स आपने अगर 50 में बेचा है और सामने वाला पार्टी रिटर्न कर रहा है तो 50 में ही रिटर्न करेगा, 10 रुपए टीडी माइनस करोगे. जो सेल्स का टीडी है वही सेल्स रिटर्न को अप्लाई होगा, और जो परचेज का टीडी है वो परचेज रिटर्न को अप्लाई होगा. ये समझ में आई बात? पक्का? तो मैंने क्या किया, पहले ग्रॉस लिया है, अभी तक सब ग्रॉस लिया है. 12 ग्रॉस, 6,000 ग्रॉस में बेचा, उसका 1/3 2,000 ग्रॉस में रिटर्न हुआ. तो अभी उसका नेट चाहिए मुझे. नेट मतलब क्या? टीडी माइनस करूंगा. कौन सी टीडी माइनस करूंगा? सेल्स वाली टीडी. व्हाट वाज सेल्स का टीडी? वसंत का टीडी चेक करो सब लोग और बताओ मुझे. वसंत का टीडी कितना था? 3% था. यस सर. 3%. 3%. यस सर. 3% ऑफ 2,000 कितना होता है? 60 रुपीज.
1940. अरे 6000 नहीं 2000, ये रहा रिटर्न्स का कर रहा हूं मैं, ये वाला नेट ढूंढ रहा हूँ। 6 तो बेच दिया, ये परचेज किया। 1940. सर 1940 आएगा ना आंसर। हाँ 1940, 1940। आर यू आर गेटिंग दैट? और यही आपके एंट्री में आपने लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न टू वसंत 1940। दिस इज अ सिंपल मेथड। आप एकदम ग्रॉस प्राइस ले लो और ग्रॉस प्राइस में से टीडी माइनस कर दो तो आपको नेट मिल जाएगा ऑटोमेटिक। दिखा? मैंने ऊपर क्या किया, मैंने 5820 का हाफ लिया। क्यों 5820 का हाफ लिया? क्योंकि हाफ नहीं, सॉरी 1/3 लिया। क्यों 5820 का 1/3? 5820 वाज नेट ओनली ना, 5820 वाज नेट ओनली आफ्टर टीडी, तो डायरेक्टली आई टुक 1/3, आई गॉट द सेम आंसर। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने ग्रॉस का 1/3 लिया और फिर टीडी माइनस किया, आंसर विल बी सेम। So, एक मिनट, हाँ is there another way of thinking? Like, for example, if we are, if there is a sales return, so एक ही सेकंड ना वीर, I'll discuss that. Let me finish this part. परचेज रिटर्न का कर लेता हूं मैं, एक मिनट। तो ये सेल्स रिटर्न का पार्ट समझ में आया आपको? 2000 में से 3% टीडी मैंने माइनस किया तो आई गॉट 1940। अच्छा, अभी एकदम स्टे विथ मी ओवर हियर। 2000 का जो लॉट वसंत ने अपने को वापस भेजा, वही सेम लॉट हम लोग क्या करते हैं? विशाल को वापस दे रहे हैं। विशाल को वापस दे रहे हैं, वही सेम लॉट विशाल को वापस दे रहे हैं। तो कहना है से द ग्रॉस प्राइस इज सेम 2000। whenever you buy and sell the same quantity, GP सेम, रिटर्न्स के वक्त भी GP सेम, ग्रॉस प्राइस सेम ही होगा उसका। यही 2000 का गुड्स हम लोग विशाल को रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन अगेन दिस 2000 इज ग्रॉस और नेट? ग्रॉस, बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हो आप? टीडी माइनस करते हो। अभी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। अभी विशाल का कंसिडरेशन चालू है रिटर्न, तो कौन सा टीडी माइनस करोगे, वसंत का कि विशाल? विशाल का टीडी माइनस करोगे, तो लेस टीडी। विशाल का कितना टीडी था? 5%। तो 5% ऑफ 2000 कितना आता है? ये 100 रुपीज आता है। तो नेट अमाउंट आएगा आपको 1900, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको? ये 1900 मिला ना, यही अमाउंट है आपका। दिस इज अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग इट। क्या करो, आप सीधा ग्रॉस अमाउंट ले लो। ओके, वो 1/3 हाफ का कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो जाने दो। ओके, चलेगा, वो जस्ट कैलकुलेशन है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट। ओके, तो परचेज किया आपने 12,000 में, सेल किया 6,000। मैंने कौन सा प्राइस लिया है? माइंड इट, ग्रॉस। 6000 का 1/3 मतलब कितना होता है? 2000, वो भी था ग्रॉस। लेकिन आपको पता है कि ग्रॉस प्राइस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। कौन सा प्राइस होता है? नेट होता है। तो ग्रॉस से नेट कैसे जाना है ये भी आपको पता है। ग्रॉस से नेट कैसे जाते हो? बाय सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अभी खाली एक आपको लॉजिक अप्लाई करना है कि अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है तो कौन सा टीडी लोगे। सेल्स रिटर्न मतलब वसंत का टाइम पे जब सेल्स रिटर्न हुआ तब कौन सा टीडी लोगे? सेल्स का टीडी कि परचेज का टीडी? कौन सा टीडी लोगे? सेल्स का टीडी। सेल्स का टीडी, वसंत का। दैट वाज 3%। तो मैंने 2000 में से 3% माइनस कर दिया, तो आई गॉट 1940। एंड वही सेम लॉट 2000, आई एम टेकिंग अगेन ग्रॉस, वही 2000 मैंने विशाल को रिटर्न किया, वो भी ग्रॉस है। अभी वापस टीडी माइनस करना है, तो कौन सा टीडी माइनस करना है? विशाल के वक्त विशाल का टीडी, द वन विशाल का from टीडी this विच इज 5%। परचेज का टीडी 5% था, तो मैंने 5% माइनस किया। आई गॉट माय आंसर टू बी 1900। इसमें आपको हाफ, 1/3, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा सर। पर आपने ऊपर हाफ को क्यों इंटू किया था? हाँ, हाफ इंटू करने का रीजन ये था क्योंकि हमने पूरा गुड्स नहीं बेचा था ना वसंत को। विशाल से जितना खरीदा था उसका आधा ही बेचा था। हाँ। और आधे का 1/3 उसने रिटर्न किया, मतलब टोटल का 1/6 रिटर्न किया। ओके, इसलिए। समझा। हाँ।
बोलो हाँ वीर, what were you saying? Yeah. In this case, we can also consider that sales returns value will always be greater than your purchase returns value. Yes. So that way you can recheck your answer. Basically, we are obviously going to sell a product at a profit. Profit, हाँ We return when the goods are returned to us, the हाँ value of sales return will always be greater than purchase. ऑलवेज But कम भी हो जनरली सकता है लॉस ना, पे नहीं लेकिन बेचा तो बहुत रेयरली लॉस पे बेचा तो कम हो सकता है, बट अदरवाइज हमेशा सेल्स रिटर्न वैल्यू विल बी ग्रेटर देन परचेज रिटर्न। फिर कभी कभी कम हो सकता है ना, कभी लॉस कभी हो सकता है, लॉस में हो सकता है कम, यस लॉस में कम हो सकता है, बराबर है। वो तो एक आपका मेथड है ढूंढने का, आपका अमाउंट राइट है कि रॉन्ग है, क्रॉस चेकिंग का एक जरिया भी कर सकते हो उसको आप, हिंट पकड़ के। ओके बाकी कैलकुलेशन समझ में आई सबको बात? ओके चारों पार्ट समझा, परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न्स एकदम बराबर से बैठा दिमाग में? किसी को और कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ये ग्रॉस वाला मेथड आया दिमाग में? पहले ग्रॉस ले लो, रिटर्न के लिए पहले ग्रॉस प्राइस ही ले लो, सब ग्रॉस ग्रॉस कर लो, और ग्रॉस में से फिर नेट पे जाना है तो टीडी माइनस कर लो। सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी। सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी। इज दैट क्लियर? नाउ ट्राई द नेक्स्ट टू ऑन योर ओन। देखो क्या दिया है, परचेज फ्रॉम रोहित सोल्ड 1/3 टू मोहित, और फिर मोहित रिटर्न 1/3 ऑफ द गुड्स व्हिच वर रिटर्न बैक टू रोहित। ट्राई करो, रोहित मोहित वाला ट्राई करो, 42 और 43। चलो खुद से ट्राई करो। हो गया। कौन है भाई ये? Both are on credit, right? So can you scroll up? स्क्रॉल अप, ओके। किस देखो ट्राई करो, डिटरमाइन, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज क्रेडिट व्हाट इज कैश। कम ऑन डू इट। 42 43 ट्राई इट ऑन योर ओन। किसका हो गया भैया, कौन बोला मेरे को अभी? I'm done. अच्छा तुम्हारा भी हो गया, गुड। जैनब सर मेरा भी हो गया। सेट नाउ, थोड़ा मेडिटेशन करो। जैनब ने भी सिली मिस्टेक किया है टेस्ट में, हाई गाई में। लेफ्ट फुट फुल। Sir, when you said sales return and purchase return are on credit, does it mean that if it was bought on cash, then he or she cannot return, or we Can return will be credit pay. अच्छा, we have to consider the credit वाला price. हाँ क्रेडिट वाला मतलब आफ्टर टीडी वाला प्राइस। आप परचेज कैसे भी करो, कैश या क्रेडिट पे, returns will be always on credit. Okay, returns can sometimes be on cash only if it is specified. Generally आपका returns कुछ specify नहीं किया तो always on credit. आपने Amazon से goods खरीदा, सिंपल सा एग्जांपल है, पेमेंट कर दी, गुड्स डिफेक्टिव निकले, आपने रिटर्न किए, तो वो आपको पैसे नहीं देंगे, वो आपको दूसरा गुड्स रिप्लेस करके देंगे। वैसा अभी अभी कोई कोई रिफंड पॉलिसी रखता है, बट बाकी नहीं तो आप गुड्स रिटर्न करो, वो नया गुड्स रिप्लेस करके देगा, ऐसा होता है। क्रेडिट नोट भी देते हैं। हाँ क्रेडिट नोट हम लोग लर्न करेंगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस सब आएगा। तो परचेज और सेल वेदर इट इज ऑन कैश और क्रेडिट डज नॉट मैटर। यही ट्रांजैक्शन देखो ना ऊपर वाला, विशाल से हमने कैश में खरीदा था लेकिन रिटर्न आर ऑन क्रेडिट, परचेज रिटर्न इज ऑन क्रेडिट, विशाल टू परचेज रिटर्न इज द एंट्री। आराम से सोचना, मोहित से कैसे खरीदा, सॉरी रोहित से कैसे खरीदा, मोहित को कैसे बेचा, कैश है या क्रेडिट है, कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए, और फिर रिटर्न। So when we are selling the goods to other person, उसको कैटलॉग प्राइस पे ही 1/3 करेंगे ना? कैटलॉग मतलब ग्रॉस प्राइस, कैटलॉग प्राइस मतलब ग्रॉस प्राइस पे ही 1/3 करेंगे ना? ग्रॉस प्राइस का 1/3। When you buy and sell the same lot, gross price is same.
Josh, how much you scored, Josh? 85. And Rudra? 82. 82. मैथ्स कितना आया मैथ्स जश को? सर 89. रुद्र को? 85. 85. मैथ्स का ध्यान रखना. रीवैल्यूएशन का आपको मालूम है कैसे करना है? रीवैल्यूएशन पहले फॉर्म तो आपको मिलता था स्कूल से कुछ रीवैल्यूएशन का, और फिर ऑनलाइन अभी तो कुछ नहीं मिलेगा ना अभी तो सब ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन आएगा अभी उनका प्रोसेस रीवैल्यूएशन का. जस्ट stay in touch with the school का group or teachers. They'll send you the link for online re-evaluation. फिलहाल 12th में तो उन्होंने ऐसा किया कि ऑनलाइन ही आपको पेपर आ जाता है, फिर आप देख के वापस अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपको 15-20 दिन. मतलब मैंने भी कल थोड़ा रिसर्च किया तो उसमें बोला कि you have 3 ways. You should go to RC and then your parents will sign there and take the paper. The second is post and the third is mail. So I'll go for mail, but how to tell them that we want a mail of my paper? हाँ वही, उसका कुछ लिंक ये लोग डालेंगे अभी. 12th में तो दिया है कॉमन लिंक, सर ऑनलाइन जाके यू कैन अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन. वैसा बट सर अगर मैंने ऐसा सुना है कि री-इवैल्यूएशन में डालते तो फिर कॉलेज में फिर टाइम लगता है, मतलब वो सब 15-20 दिन तो लग जाएंगे. अभी थोड़ा फास्ट हो गया है तो 15 days एटलीस्ट इट विल टेक. बट देन मार्कशीट कब आएगा आपका नया वाला कंफर्म करना पड़ेगा आपको. थोड़ा डिले कर सकता है वो एडमिशन प्रोसेस को. तो सर कॉलेज में सपोज मैंने एलएम के लिए किया अप्लाई और फिर डिले हुआ तो फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होगा? वो पूछ लो आप कंफर्म करके. अभी तक ऐसा इशू आया नहीं है कभी किसी का कि डिले हुआ है कॉलेज, मतलब रीवैल में डालने वाला. कितना आया, हाउ मच यू गॉट परसेंटेज? 92.4%. मुझे लग रहा है मैथ्स में कम आया है. कितना आया है? सर 91 आया. हाँ लेकिन गुजराती हो ना, विच गुज्जू कोटा? गुजराती. हाँ तो एनएम मिल जाएगा गुज्जू कोटा. वाई आर यू वरिंग? श्योर, डेफिनेटली मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा. नो नीड फॉर रिवैल, रहने दो. और हो गया. या हाउ आर यू परचेजिंग द गुड्स? देख के आइडिया आया सबको? कैश और क्रेडिट? Credit. Credit. Which discount should come? Trade. Only trade. So 8100. किसी ने कैश डिस्काउंट नहीं किया ना, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट to Rohit account. 8,000. All of you got this first one? Sold the same मतलब पूरा नहीं, 1/3 बेचा है अभी. तो किसका 1/3 लेना है पहले आपको? 9,000. 9,000. टीडी के लिए याद है ग्रॉस प्राइस सेम है आपका, तो 9,000 का 1/3 होता है 3,000. 3,000 पे टीडी कितना परसेंट टीडी है सेल का? 5%. तो 5% होता है 150. तो नेट अमाउंट इज 2850. एंट्री क्या होगा? ये भी आपका क्रेडिट पे हो रहा है, दिख रहा है? पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. तो मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. So this is also on credit 2850. Got it? So I didn't understand the 2850 thing. See, you are selling on cash or credit? Trade. Credit. So which discount should come? Trade. Trade. तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे होता है? ग्रॉस प्राइस. ग्रॉस प्राइस तो दिया नहीं है, 1/3 you are selling. तो whenever you buy and sell the same lot, GP remains same. मतलब अगर पूरा बेचा होता तो 9,000 पे आता,
हाफ बेचा होता तो 4,500, 1/3 बेचा है तो 3,000, दैट इज 9,000 का 1/3। अंडरस्टूड? अभी अभी किया ना हमने हाफ, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी सोल्ड हाफ, तो 10 का हाफ 5, भी 9 का 1/3 3, राइट? देन ये हो गया सेल्स आपका। देन मोहित रिटर्न 1/3 ऑफ द गुड्स। अभी देयर आर टू वेज, आई विल शो यू दैट इजी वाला वे। इजी वाला वे क्या करने का आपको, देखो ये रोहित, ये मोहित, ग्रॉस प्राइस देखो, सीधा ग्रॉस। मोहित से कितने ग्रॉस का गुड्स खरीदा था, तो आई थिंक 9,000, 9,000 वाज ग्रॉस। इसको 1/3 बेचा, तो 1/3 ऑफ ग्रॉस मतलब 3,000 हो गया। ये हो गया परचेज, ये हो गया सेल। अभी मोहित ने कितने अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया, 1/3, तो डिड मोहित रिटर्न एंटायरली 3,000 का 1/3? 3,000 का 1/3 with 3,000 का 1/3 कितना होता है, 1,000, और ये 1,000 क्या है, ग्रॉस। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करोगे, लेस टीडी। कौन सा टीडी, 5%, मोहित वाला टीडी तो कितना होता है 50 रुपीज। तो अमाउंट आ गया आपको 950 रुपीज, सिंपल। और यही 1,000 का हमने वापस रोहित को रिटर्न किया, सेम लॉट, सेम 1,000 का हमने रोहित को रिटर्न किया, लेकिन वो भी 1,000 क्या है, ग्रॉस है, मैंने ग्रॉस लिया हुआ है। तो नेट कैसे मिलेगा, लेस टीडी। अब कौन सा टीडी माइनस करोगे, फॉर 10%. 10%, रोहित का टीडी, दैट इज 100 रुपीज, नेट अमाउंट इज 900। ये परचेज रिटर्न का अमाउंट। अब खाली आपको एंट्री में डालना है इसको, व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न्स, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, debit to Mohit. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, दैट शुड बी 950। समझ आया ये 950 कैसे आया, ये सब ग्रॉस, ये ग्रॉस, ये ग्रॉस। अभी ग्रॉस से खाली रिकॉर्ड करना है तो नेट, टीडी हटा दिया। और यहाँ पे भी ये सेम ग्रॉस प्राइस पे हमने रिटर्न किया है, ग्रॉस प्राइस में से नेट ढूंढना है, सब्ट्रैक्ट टीडी। खाली याद क्या रखना है, सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी एंड परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी। इज दैट क्लियर? तो टू मोहित एंड देन परचेज रिटर्न का क्या एंट्री होता है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न्स, रोहित अकाउंट डेबिट टू Purchase. purchase returns account. Rohit is the receiver, credit all incomes and gains, 900 rupees, 900 rupees, goods returned back to Mohit. Tell me, any doubt, anyone in this? I didn't understand the second part of this. For purchase sales you understood? Now purchase returns and sales returns you are telling, right? तो क्या दिया है अपने को, मोहित रिटर्न 1/3 ऑफ द गुड सोल्ड टू हिम। तो मोहित को हमने 3,000 का गुड सेल किया था ना, ये मैं ग्रॉस ले रहा हूं, सो दैट कैलकुलेशन इज इजी। मोहित को हमने 3,000 का गुड सेल किया था, उसका 1/3 कितना होता है, 1/3 1000, 3,000 का 1/3 उसने रिटर्न कर लिया। बट 1000 कौन सा प्राइस है, ग्रॉस है। अपने को बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना है, नेट। ग्रॉस से नेट कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, Subtracting the TD. TD. So which TD will I subtract, 10% or 5%? I'm talking about sales returns. For Rohit it will be 10% and for Mohit it will be 5%. So I am talking about sales return. Sales return पे मतलब मोहित से हो रहा है ना, तो 5% आएगा ना मोहित का प्राइस। Are you getting that? समझ में आया? तो मोहित का it will be 5% and then you subtract and you get 950, and the same lot I am returning it to Rohit, same gross price I am returning it. Again I am taking gross,
बट आई नो ग्रॉस तो रिकॉर्ड होगा नहीं बुक्स में, तो नेट करना है। तो व्हाट इज द नेट प्राइस? अभी नेट कैसे मिलेगा रोहित के केस में? आई विल सब्ट्रैक्ट रोहित का टीडी। व्हाट इज रोहित का टीडी? 10%, तो 900। अगर 2000 ग्रॉस का रिटर्न हुआ होता सपोज, सो 2000 पे सेल्स रिटर्न के वक्त सेल्स का टीडी, 2000 पे परचेज रिटर्न के वक्त परचेज का टीडी। ग्रॉस तो सेम ही है ना यार, परचेज रिटर्न, सेल्स, परचेज रिटर्न, सबका ग्रॉस तो सेम ही है। ग्रॉस प्राइस इज कॉमन फॉर ऑल। तो आपको सेल्स रिटर्न है तो सेल्स का टीडी माइनस करो, परचेज रिटर्न है तो परचेज का टीडी माइनस करो। परचेज कर रहे हो तो परचेज का टीडी, सेल्स कर रहे हो तो सेल्स का टीडी। इज दैट क्लियर? Understood or no? Yes. So over here to Rohit, we returned at the price from what we had purchased from him, and Yeah, Mohit returned to us at what price he had purchased from sold us. to him. हाँ, exactly. Okay, thank you. Same price. इसलिए Got it. सेम डिस्काउंट। Got it. Got it? आपने रोहित से 100 रुपीज में खरीदा है। अच्छा, माया एंड कशिश, यू कैन गो। माया एंड कशिश। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। अगर आपने 100 रुपीज में परचेज किया है, ओके, और आपने 200 रुपीज में सेल किया है, परचेज किया है 100 में, 200 में सेल किया है। अभी 200 में से उसने 1/4 रिटर्न कर दिया, मतलब 50 रुपीज का रिटर्न किया, 200 का 1/4, और यही आप रिटर्न कर रहे हो, तो आप किसका 1/4 लोगे? आप 100 का 1/4 लोगे, विच इज 25 रुपीज। दिस इज परचेज रिटर्न का प्राइस। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हैपन एट सेम प्राइस, परचेज एंड परचेज रिटर्न हैपन एट सेम प्राइस, इसलिए सेम टीडी। सेल्स के वक्त सेल्स रिटर्न्स का टीडी, सॉरी, सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी, एंड परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी। सेम ट्रेड डिस्काउंट, सेम रेट, to get the same price. Is that clear? Got it. अच्छा, अभी Sir, हाँ can we do directly 2850 is 1/3? हाँ, 2850 का भी 1/3 डायरेक्टली कर सकते हो, you'll get 950। लेकिन फिर 8100 का 1/3 मत करना, 1/9 करना पड़ेगा। 8100 का 1/9 करना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 का 1/3 तुमने सेल किया, उसका 1/3 रिटर्न हुआ, तो 8100 का 1/9 करोगे तो you'll get that. Yes, that is also a way to do. वो हमने पहले भी अप्लाई किया था, शॉर्टकट। तो सर भाई तो मुझे शॉर्ट में हुआ ना, मतलब शॉर्ट में आराम से जम रहा है तो करो, किसी किसी को नहीं जमता है, दैट्स व्हाई आई शोड यू बोथ द मेथड्स। दोनों मेथड तुम्हारे पास है, जो जमता है वो करो। ओके, दोनों मेथड आता है तो दोनों मेथड से करो और क्रॉस चेक कर लो, और श्योर हो जाओगे अमाउंट के साथ। पहले नहीं तो ये ग्रॉस वाला इज मेथड क्या था? दूसरा मेथड में हम लोग 2850 का 1/3 किए थे ना, नेट अमाउंट का। 2850 का जो ये है अमाउंट सेल का, ये नेट अमाउंट है आफ्टर टीडी वाला, सीधा इसका 1/3, क्योंकि 1/3 रिटर्न किया तो 950। एंड 8100 का 1/3 नहीं करना है, क्योंकि 8100 का 1/3 सेल किया था, उसका 1/3 रिटर्न हुआ है, मतलब 8100 का 1/3 का 1/3, 1/9, 8100 का 1/9 will give you the same answer, 900। जैसे लास्ट समय याद है 1/3 और हाफ, 1/6 किया था मैंने, हाफ का 1/3 रिटर्न हुआ था, इधर 1/3 का 1/3 है तो 1/9, दैट वे आल्सो यू कैन। उधर फिर टीडी माइनस मत करना, ये हाफ 1/3 में टीडी माइनस मत करना, क्योंकि हमने नेट अमाउंट लिया। ये कैलकुलेशन अगर हम लोग ने दिखाया है पेपर में तो मार्क्स कटेगा, ये इतना सा कैलकुलेशन। ये मेन सब में नहीं दिखाना है आपको, पीछे दिखाना है, पीछे पीछे रफ वर्किंग में दिखाना है। हम लोग करेंगे अभी एक्चुअल प्रॉब्लम्स, तभी पता चलेगा आपको। ओके, चलो लास्ट 23, 24, 25 खत्म करो। सम नंबर 10 का 23, 24, 25। आई एम नॉट स्टार्टिंग विद जीएसटी, आई स्टार्ट इट टुमारो। आज आपको थोड़ा रिसर्च का काम दूंगा मैं। सम नंबर 10 का 23, भाई तू डन ही बोलता है, रुक जरा। हो गया सर। डनी पे सवाल सर होमवर्क के लिए कि सर अभी 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 करो, अभी। सम नंबर 10 का 23, 24, 25। सम नंबर 10 का 23, 24, 25।
So, like the sums we did right now, that he's returned to us and he returned to somebody else. Are there more sums like these? यस आएंगे और आगे बहुत आने वाले हैं. ये TDCD का नेट प्रैक्टिस था और डिटेल्ड प्रैक्टिस विल गेट आगे हर एक सम में आएगा. यही सब अभी करना है, जर्नली करना है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. कोई भी बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो. बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्या है. So it's Yeah. half and half. It's Why half and half? 40% and 20, 60. 40 and 60. अच्छा 40-60 है. The printing error है. TD10 है ना. Cash is 40. Cash is 40, right? And credit is 60. CD is 2%, right? Yes.
Please check the answers. Bolo, any confusion in this? Any doubt? This was normal. Partly cash, partly credit you sold, then return था. पहले normal था तो same amount. Net दिया है या कुछ नहीं दिया है तो same amount ले लेने का. कभी net देगा, कभी same amount देगा. Gross दिया है. जब भी gross दिया है तब बत्ती चमकना चाहिए. Are we supposed to record gross price anywhere? No. तो जब भी gross दिखेगा तो what are you supposed to do? Subtract. Trade discount आपको subtract करना है. Is that clear? Trade discount you are supposed to subtract. Comfortable with all the three items? हमने कौन सा वैरायटी किया है? हमने नॉर्मल वाला किया, कैश क्रेडिट वाला. फिर हमने पार्टली कैश पार्टली किया. फिर हमने रिटर्न्स देखा, ग्रॉस है तो टीडी माइनस नेट है तो सेम. और फिर हमने परचेज और सेल का कॉम्बिनेशन किया. सेम ट्रांजैक्शन व्हेन यू बाय एंड यू सेल, the gross price remains same. Is that clear? So these are all variations possible in trade discount and cash discount. Okay. तो आज आपको कोई खास होमवर्क नहीं है, रिटर्न होमवर्क नहीं है. ओके, बट आपको थोड़ा रिसर्च का होमवर्क दे रहा हूँ. ठीक है, क्या रिसर्च करना है? पहले मुझे बताओ हमारे कंट्री में कौन से टाइप के टैक्सेस हैं? ब्रॉडली CGST, SGST. एक हो गया. जीएसटी के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी हो गया. जीएसटी के अलावा भी काफी टैक्स है. इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स था, अब जीएसटी टोल टैक्स, टोल टैक्स. यस, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स भी है. सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स था, अभी जीएसटी बन गया. और सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स भी था, अभी जीएसटी बन गया. हाँ, इनहेरिटेंस टैक्स, कौन सा? इनहेरिटेंस टैक्स. यस, इनहेरिटेंस टैक्स वेल्थ टैक्स के जैसा होता है. इनहेरिटेंस टैक्स, यस, वेल्थ टैक्स. और इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स है. इनपुट एंड आउटपुट इज जीएसटी का पार्ट. इंपोर्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स, बिजनेस का टैक्स, वो इनकम टैक्स हो गया बिजनेस पे. कॉर्पोरेट टैक्स, गोल्ड टैक्स होता है, वो वेल्थ टैक्स होता है. वेल्थ, और स्पेशल असेसमेंट ऑन प्रॉपर्टी, वो सब इनकम टैक्स में आ जाता है. सर डायरेक्ट टैक्स, टैक्स इज अ टाइप ऑफ, वही बता रहा हूँ अभी. देखो, Import गिफ्ट tax. टैक्स होता है. सॉरी, इंपोर्ट टैक्स, import tax, that is GST now. Export tax is also GST now. तो आपको यही रिसर्च करना है. देखो, आपको नाम तो पता है, आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो आपको ये मैं कुछ टर्म्स दे रहा हूँ. ठीक है, इन टर्म्स पे आपको रिसर्च करनी है और इंफॉर्मेशन ढूंढनी है फ्रॉम इंटरनेट. गूगल यूज कर सकते हो, यूट्यूब यूज कर सकते हो. ठीक है, बट ढूंढ के लाना, और सब लोग ढूंढना. ये काम आने वाली चीजें आगे. ओके, अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ कल, पता चला आपको? न्यू एजुकेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड. So such a brilliant and massive and good change the government क्या has चेंज done. हुआ? हम लोग पे भी एप्लीकेबल होगा. तुम लोग पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आने वाले सालों से आएगा, बट जिसको आएगा उसका भला होगा. अभी मार्क्स बेस्ड सिस्टम से दे आर गोइंग टू नॉलेज एंड स्किल बेस्ड सिस्टम. ओके, तो याद रखना. आई वाज तो एकदम हैप्पी, आई वाज ऑन द 9th heaven yesterday. नाउ एकदम ध्यान से देखना यहाँ पे, कौन सा चीज आपको रिसर्च करके लाना है कल. देखो, पहले तो डायरेक्ट टैक्स
और इनडायरेक्ट टैक्स? Indirect taxes are on goods and services and मेन मीनिंग बराबर बोल रहे हो, मीनिंग मेरे को चाहिए सबका, रिसर्च करना है इस पे। ओके, आज कुछ रिटर्न होमवर्क नहीं है तो टाइम पास मत करना, थोड़ा ज्ञान कमाना थोड़ा है, ठीक है, ऑनलाइन और यूट्यूब से। बोला फनी वीडियोस मत देखना, ये काम करना। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये ढूंढने की ट्राई करना, हम लोग सब डिस्कस करेंगे कल। अच्छा, इसके अंदर आता है आपका इनकम टैक्स आ जाता है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, आपका प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है, inheritance tax. इनहेरिटेंस टैक्स आ जाता है। इनहेरिटेंस ठीक नहीं करोगे, वेल्थ टैक्स भी ठीक है, इतना खास यूज में नहीं आता, प्रोफेशनल भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसमें आप इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और बस यही दो अच्छे से देख लो खाली, बहुत है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। Corporate Indirect tax is on the profits of a company. कंपनी, यस, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका जीएसटी, ठीक है। अब जब जीएसटी आया तब ये सब गायब हो गए। कौन से गायब हो गए? कस्टम ड्यूटी गायब हो गया, Excise duty. एक्साइज ड्यूटी गायब हो गया, वैट गायब हो गया, सेल्स टैक्स गायब हो गया, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स गायब हो गया, सर्विस टैक्स गायब हो गया, ऑक्ट्रॉय भी गायब हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी गायब हो गई। ओके, ये सब गायब होने के जगह पे आपको जीएसटी मिल गया, ठीक है। तो आपको खाली रिसर्च ये करना है कि पहले तो डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है। और डायरेक्ट के अंदर ये इनकम टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, एंड इनडायरेक्ट के अंदर ये जीएसटी क्या है, और जीएसटी के आने की वजह से क्या फायदा या नुकसान हुआ, ये सब चले गए ना। तो व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी ओवर अदर, मतलब ओवर रिमेनिंग टैक्सेस, ये बाकी सब जो चले गए, ओवर प्रीवियस टैक्स, मतलब प्रीवियस टैक्स के कंपैरिजन में जीएसटी क्यों अच्छा है, इतना रिसर्च करना आज, ठीक है। क्या क्या करना है समझ आया? डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट कॉर्पोरेट है, क्या है डायरेक्ट का अर्थ क्या है, मीनिंग। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, जीएसटी के आने की वजह से ये सब चले गए, इतने सारों को गुल कर। एंटरटेनमेंट टैक्स भी था, उसको भी हटा दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स भी गुल हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स भी गुल हो गया। ओके, तो ये सब टैक्स को हटाने का क्या रीजन था, क्या मदद हुई जीएसटी से, ये रिसर्च करके लाना है आपको, कल के लेक्चर में हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आपको सिलेबस में जीएसटी का छोटा सा पार्ट है, एंट्रीज में बहुत छोटा सा पार्ट है, आराम से सीख लेंगे, नॉट अ बिग डील, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ओके, आगे जाके काम करना तो वही काम आने वाला है। सो टेक इट इन अ सीरियस वे एंड डू रिसर्च। ओके, कल हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे। सर आज जो आपने सम्स करा है उसको अगर वैसे प्रैक्टिस करना हो तो किधर से करने का? प्रैक्टिस के लिए आप यही रिवाइज करो अभी, ये सब वैरायटी है ना, जो लास्ट वाला जो मैंने करवाया ना 1/3 2/3 वाला, वो कभी पूछते नहीं है, वो खाली आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने करवाया है, बहुत तो यही वापस करें ना, यही रिवाइज कर लो। यस, यही रिवाइज कर लो। दैट्स So you send this PDF. एंड जर्नल एंट्री, हाँ ये पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं। जर्नल एंट्री जो हमने चैप्टर 3 किया था वो किधर से प्रैक्टिस करें? अरे वो अभी आएगा, खत्म नहीं हुआ है जर्नल, 25 सम करने बाकी है। अरे नहीं, वो जो बेसिक एंट्रीज थी वो। हाँ बेसिक सब, बेसिक कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट सब आएंगी वापस। हाँ वही होएगा, बहुत प्रैक्टिस होएगा, डोंट वरी। बाय सर, थैंक यू सर। सर एजुकेशन सिस्टम बदल के आप बोल रहे थे ना? हाँ वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कल। आज ये रिसर्च करके आओ पहले, ठीक है। तो डाउट है तो रुको, अदरवाइज वी मीट टुमारो। बाय बाय सर।